Hello students. So CBSE 12th standard students, I am going to explain you the poem Aunt Jennifer's Tigers that is taken from your textbook Flamingo, and it is written by Adrienne Rich. So the main points of poem are: this Aunt Jennifer, she reveals her dream of happier life in her needlework. She makes a panel with the images of tigers prancing proudly, and the tigers are free unlike their creator. And these proud tigers, they show no fear of men. But this Miss Jennifer, who lives in fear of her husband. And needlework is her escape. In this way, she is escaping to a jungle where the wild animals are without fear. Okay. The tigers remind the poet about chivalric men who respect women and act kindly. But you see in the second line, the yellow color denotes sun and energy, while green color denotes the spring and rebirth. Because somewhere Miss Jennifer is also longing for this energy and rebirth, because she is fed up of her married life. Why Jennifer's hand trembled to pull out the needle? Because of the weight of her husband's wedding band or ring. Okay. Now, why she is fluttering through her wool? She is trying to do this art piece or this needlework very fast, because she fears that she will not live long enough to complete this artwork or to complete this creation. So even after her death, her hands would look worn because of her hard times in her married life. And she was trapped in her marriage. Okay, her husband was the master. Okay, but the Jennifer's tigers that she has shown in the artwork, they are totally different. They represent strength. Okay, but Jennifer is mentally in the grip of terror of married life, and she made that art piece, and she thinks that this art piece will live even after she is dead or buried. So what is the theme of the poem? That marriage is unequal due to male domination. And Miss Jennifer thinks that the world of art is happier than the real world. So these are the main points of the poem. Later I'll tell you the figure of speech used in this poem. Let us come to the poem. See, this Miss Jennifer, she is not happy in her married life. Why? Because her husband dominates her. He dominates her. Okay, so that is why क्या वो कभी कभी क्या कर रही है, नीडल का कुछ काम कर रही है और वो एस्केप कर रही है, और उसके से क्या बना रही है, कुछ वो नीडल के थ्रू क्या वीव कर रही, क्या बना रही है, वो कुछ आर्ट वर्क बना रही है, उसमें वो टाइगर्स बना रही है. तो टाइगर्स क्या शो करते हैं बेटा? द टाइगर्स शो पावर एंड स्ट्रेंथ. ओके, एंड इट इज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट. ऑन वन साइड मिस जेनिफर, वो कैसी है? लेडी, शी इज वीक, old lady. On the other hand, she is showing tigers, and tigers represent power and strength. तो कैसे देखो कॉन्ट्रास्ट है, और बनाने वाली वीक है. ओके, नाउ सी द पोएम. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. See, Miss Jennifer has created her tigers in panel with ivory needles. Ivory क्या होता है? हाथी दांत. उससे कुछ उन्होंने बनाया है नीडल से. ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. अब जो उसने बनाया है, जो भी एनिमल, वो कैसा है? उसको किससे कंपेयर किया गया? ब्राइट टोपैज. टोपैज क्या होता है? येलो स्टोन होता है. ठीक है, तो उसे कहते हैं दीज ड्वेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट लुक लाइक ब्राइट येलो शाइनिंग टोपैज. और ये हरे हरे जंगल में पीले पीले कैसे दिख रहे हैं? टोपैज, येलो स्टोन की तरह दिख रहे हैं ग्रीन फॉरेस्ट में. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. एंड दीज टाइगर्स क्या कर रहे हैं? दे आर फियरलेस, एंड दे आर स्टैंडिंग under the tree, and there some men are also there, but
दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन। वो जो आदमी वहां पे खड़े हैं पेड़ के नीचे, उनसे डर भी नहीं रहे हैं, वहां पे भी चले जा रहे हैं, ठीक है। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। दे पेस मीन्स दे आर रनिंग फास्ट, और कैसे, दे लुक वेरी ब्रेव विथ कॉन्फिडेंस। सो देखो आंट जेनिफर एक तरफ बहुत वीक दिखा रहे हैं, बट हर टाइगर्स दे आर प्रेंसिंग, हाँ, वो जो है आराम से फियरलेस होके चल रहे हैं। दे आर जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, आराम से घूम रहे हैं, और ग्रीन ग्रीन जंगल में कैसे दिख रहे हैं, येलो येलो टोपैज की तरह, ठीक है। ग्रीन फॉरेस्ट, दे लुक लाइक ब्राइट येलो शाइनिंग टोपैज, वैसे दिख रहे हैं। एंड दे आर फियरलेस एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन हु आर स्टैंडिंग बीनीथ द ट्रीज। पेड़ के नीचे लोग खड़े हैं, दे आर रनिंग फास्ट, ओके, दे आर ब्रेव विथ कॉन्फिडेंस। Now come to the second paragraph. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Fluttering अभी हमने बोला, she is moving very fast. तेजी तेजी से काम कर रही है. Find even the ivory needle hard to pull. कभी कभी क्या हो रहा है, आइवरी की नीडल है, she is finding that ivory needle कि बहुत मुश्किल हो रही है उसको निकालने में. Why she is in a hurry? उसे लग रहा है पता नहीं ये आर्ट पीस वो कंप्लीट कर भी पाएगी कि नहीं, ठीक है। एंड द हैवी वेट ऑफ हर अंकल्स वेडिंग बैंड, वो अंकल ने जो वेडिंग बैंड उसको पहनाया है या वेडिंग रिंग कह लो, ये उसका वेट उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक्चुअली उस वेट बैंड का वेट क्या होगा ये तो इमेजरी है, वो सोच रही है इसका शादी का बोझ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो समवेयर शी इज इन अ हरी, वो फास्ट फास्ट काम कर रही है। एंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो वो बैंड कैसा है, दैट लाइज हैवी, उसको लग रहा है हर मैरिड लाइफ इज लेफ्ट विथ बिटर मेमोरीज बिहाइंड, उसे लग रहा है पीछे जो इतनी बोझ भरी यादें हैं, इतनी कड़वी यादें उसके बैंड के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो बिल्कुल भी उस लाइफ में खुश नहीं है। तो देखो मिस आंट जेनिफर्स फिंगर्स बहुत फास्ट फास्ट, शी इज फ्लटरिंग, उसे लग रहा है पता नहीं ये पीस पूरा भी नहीं हो पाएगा कि नहीं, और आइवरी नीडल को कभी कभी खींचने में भी दिक्कत हो रही है, उसको लग रहा है ये वेडिंग बैंड मेरे को बहुत भारी पड़ रहा है, बिकॉज वो बिटर मेमोरीज हैं शादी की, उसको अच्छी मेमोरीज नहीं हैं, तो इसके लिए उसको बहुत हैवी फील हो रहा है, ठीक है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. कह रहे जब आंट की डेथ हो जाएगी तो उनके टेरिफाइड हैंड्स कैसे होंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स। ऑडियल्स मीन्स हार्ड एक्सपीरियंसेस जो थे उसकी लाइफ के, वो सब उसके हाथों पे दिखेंगे। भाई उसके हाथ अभी तक रफ हो गए ना, क्यों, क्योंकि शादी के जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं उससे। एंड द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing. तो कह रहा है हार्ड एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हर पास्ट मैरिड लाइफ विल नॉट लीव इवन आफ्टर डेथ। तो वो एक्सपीरियंसेस तो आदमी भूल नहीं पाता है, ठीक है, पर ये टाइगर्स जो हैं वो जरूर प्रैंस करते रहेंगे, वो अनअफ्रेड, वो आर्ट पीस में मतलब वो टाइगर्स हमेशा जिंदा रहेंगे। सो द टाइगर्स इन द पैनल विल गो ऑन जंपिंग अहेड, वो टाइगर्स अपना कूदते रहेंगे। दे विल बी प्राउड, वो प्राउड होंगे। दे विल बी अनअफ्रेड, वो डरते भी नहीं होंगे। बट आंट विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड बट हर टाइगर्स विल गो ऑन जंपिंग। तो अभी लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं आंट डेड भी हो जाएगी तब भी उसके बिटर एक्सपीरियंस तो कभी मिटने वाले हैं नहीं, ठीक है, पास्ट मैरिड लाइफ के वो बाद में भी रह जाएंगे, पर ये टाइगर्स जो हैं पैनल में उन्होंने बनाए हैं, दे विल गो ऑन जंपिंग, और वो फियरलेस होके इधर उधर कूदते रहेंगे, ठीक है। सो आंट विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड बट हर टाइगर्स विल गो ऑन जंपिंग, वो जिंदा। दैट मीन्स आर्ट पीस हमेशा रहेगा, जिसने आर्ट पीस बनाया वो तो नहीं है, पर वो उसका बनाया हुआ आर्ट पीस हमेशा ही रह जाता है, और ऐसे ही तो लोग याद करते हैं बाद में उस आर्ट पीस को देख के। सो वो यही फील कर रही है कि द वर्ल्ड ऑफ आर्ट इज हैप्पियर देन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में तो वो स्ट्रगल कर रही है, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा मैरिड लाइफ में, इतनी बूढ़ी भी हो गई हैं, पर जो वर्ल्ड ऑफ आर्ट है ये तो हमेशा ही रहने वाला है, उसमें तो टाइगर्स खुश हैं, भाई आराम से जंगल में घूम रहे हैं, ठीक है। एंड वेडिंग बैंड है क्या, दैट इज अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज, कि जिसको तोड़ ही नहीं सकते उस बॉन्ड ऑफ मैरिज को। और वाई टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स क्यों डरे हुए हैं, बिकॉज अनहैप्पी मेमोरीज आर फ्रेश इन हर माइंड, दिमाग में उनको सारी कड़वी बातें याद हैं और उसकी वजह से उनके हाथ जैसे डरे हुए हैं, ठीक है ना। एंड द टाइगर्स शो पावर एंड स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड
शार्प कॉन्ट्रास्ट किसके साथ? मिस जेनिफर, बिकॉज वो ओल्ड लेडी है एंड शी इज वीक। वाई डेनिजन्स एंड शिवेलरिक? डेनिजन्स एंड शिवेलरिक ये टर्म क्यों यूज किया फ्रेज? सो मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजीशन इन एनिमल वर्ल्ड किसकी होती है? टाइगर्स की, है ना, कि उनके अंदर ताकत कितनी है और पोजीशन भी तो होते, शेर भी जंगल का राजा है। ओके, सो these are the points and this was about the poem. Okay, now let us talk about the figure of speech that is used in the poem. See children, first of all, contrast. Contrast means the tigers are in contrast to Jennifer, है कि नहीं? फिगर ऑफ स्पीच में दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ वो वीक और डरी हुई है और टाइगर्स में क्या है? स्ट्रेंथ है और वो खुश हैं खुले जंगल में। ओके, देन मेटाफर भी यूज किया गया है, कंपैरिजन ऑफ येलो स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर टू अ प्रीशियस स्टोन। टोपैज से उसको कंपेयर किया गया है। जब कंपैरिजन होता है तो क्या होता है? मेटाफर हो जाता है ना। हाइपरबोल, हाइपरबोल यहाँ पे क्या है? द वेट ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग रिंग और बैंड जो भी है वो अभी इतना क्या वेट, ये हाइपरबोल है। एक वेडिंग रिंग की इतनी भारी हो गई कि हाथ उसका उठ नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया? हाइपरबोल। एंड नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिटरेशन, prancing प्राउड। तो पी से prancing एंड पी से प्राउड, ठीक है, लास्ट लाइन में है, लास्ट लाइन ऑफ द पोएम विल गो ऑन prancing प्राउड, पी पी तो एलिट्रेशन है। एंड व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? देखो, स्क्रीन ग्रीन ए ए, देन ट्री सर्टेनिटी, देन बी बी, देन वुल पुल सी सी, एंड बैंड हैंड डी डी, lie by EE, made unafraid FF. So the rhyming scheme is AA, BB, CC, DD, EE, FF. So thank you students. Please take out your textbook and go through the poem. अभी इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो इसके क्वेश्चन आंसर्स और चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आप बोर्ड में अपना पेपर बहुत अच्छे से लिख सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।